I think in BBC 10 we have discussed the Ramchandran plot only. So after this class for BBC 101, 103, we will cover that portion. Okay. So we'll start now with the tertiary structure only. I think you all are familiar with the primary and secondary structure of protein. So it's going to be a bit confusion if I will start with tertiary structure, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then. After this class, we'll discuss remaining thing once this BBC 101 is over. So we have discussed till the secondary structure of protein. So what do you mean by the secondary structure of protein? Ma'am, secondary, would you like to know about definition, ma'am? Yeah, just the definition or brief about secondary structure. Conformation of polypeptide by twisting or folding. And the Yes, two most common secondary structure like alpha helix and acids. very good. So when we talk about protein organization, then the primary first the structure come, that is the primary structure. Primary structure is nothing but it is just the assembly of amino acid. That means the polymer of amino acid. Then next comes secondary structure. Secondary structure means protein will start just folding. So that is the secondary structure. But when we talk about tertiary structure is the packaging of that protein. You know, your cell is very small size and thousands of enzymes and other proteins are there. So it should be packed in such a way that it should be accommodated. And also for the three-dimensional structure and the functionality of this protein, it should be folded and packed in the proper manner. Okay, if folding is not proper, packing is not proper, then it will not work properly. So that is the tertiary structure. My slides are visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the tertiary structure, that is the folding and the packaging. So whenever we talk about tertiary structure, so that time whatever type of bonds we have studied till now, that is the hydrogen bond, then disulfide bond, salt bridges, hydrophobic, hydrophilic, all the types should be there in there because it should provide the some kind of stable three-dimensional structure. Okay, so these all types of structures are there. So sometimes question could be asked like this, that in case of primary structure, what are the different types of interaction or bonds are present? Then what is your answer? In case of primary structure of protein, what are the bonds are present and what are the different interactions are present? Peptide bond. Only peptide bonds. Yeah, and sometimes disulfide bonds also. Okay, but in general, 99% cases that is the peptide bond only. But when we talk about secondary structure, then Hydrogen bond. Peptide bonds and disulfide bonds. And hydrogen bond also. hydrogen bond. Yes, and Hydrogen bond. hydrogen also. And when we talk about tertiary structure, then hydrophobic, van der Waals forces, salt bridges, hydrogen, everything will be there. Okay. So this type question can be asked in true false also. If I am asking you like that, is it true to say that hydrophobic interactions are present in case of primary structure and secondary structure? Is it true? No, ma'am. Yes, it is not correct. Yes. So that is the tertiary structure. And tertiary structure is required for the overall the functionality of the. Once it is in the tertiary structure, then it becomes the functional. Functional in the sense that it means it is working as a enzyme or other function, whatever we'll discuss, all those functions. And one more important thing about tertiary structure is that whenever protein will fold, whether it is secondary or tertiary, so what happens, all the hydrophobic means that water fearing amino acids are there, that is the non-polar amino acid, that will be inside, located inside the molecule. Okay, and whatever hydrophilic R group, that will be the present outer surface of the uh, protein. Why this is happening? Why this hydrophilic are present on the outer surface and hydrophobic are inside of the molecule? मैम अगर हाइड्रोफोबिक यस बोलिए, कोई भी
बोलिए आप में से. आई एम नॉट एबल टू सी हु इज स्पीकिंग बट एनीवन कैन स्पीक. It provides stability to the tertiary structure of the protein. Yeah, that's true. That provides tertiary stability. But why it is providing stability? What is the situation and what is the main reason behind this? Ma'am, because the outer medium is polar. Right, because we know that most of our aqueous environment, that 70% is water only. So all the medium for the reaction and most of our body parts is there, water is there, and water is polar. So you know that these hydrophobic are there, water fearing. So that's the reason whenever any kind of folding or tertiary structure is there, तो जितने भी हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर से डरते हैं. और आपको पता है कि आपके बॉडी का 70% है दैट इज वाटर. तो वो हमेशा क्या होगा, अंदर की तरफ रहते हैं, प्रोटीन के इनसाइड में छुपा हुआ रहता है वो. और जितने भी हाइड्रोफिलिक हैं तो वो वाटर लविंग है, तो दैट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ओके, so that is very important. Whenever we talk about this tertiary structure, you should always remember these 2 points. कि कौन सा बाहर रहेगा, कौन सा अंदर रहेगा. तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर जितने होते हैं वो सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो सारे अंदर की तरफ छुपे हुए रहेंगे. और पोलर हैं तो उनको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो वो बाहर की तरफ रहेंगे. तो दिस इज अबाउट योर टर्सरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि प्रोटीन में जनरली हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन का सिंगल अभी तक बात किया दैट इज अबाउट सिंगल पॉलीपेप्टाइड. Not the case with all the proteins. Many times what happens, proteins are present in the more than one polypeptides are there. So whenever more than one polypeptide is there, then how these polypeptides are interacting with each other. So that comes under quaternary structure. Okay. तो यहाँ क्या होगा कि सिंगल आपको तब आप बात करें टाइमली फोल्ड हो रहा है एंड देन वो पैकेजिंग भी हो रहा है. बट एक ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है तो दोनों पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं. विद इन द मॉलिक्यूल हमने देखा देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयन बॉन्डिंग तो सेम क्या होता है व्हेनेवर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आल्सो देयर. सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, तो ऑल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, whether it is disulfide bond or hydrogen hydrophobic सारे फोर्स मिलके एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर देते हैं. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर व्हेनेवर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आर देयर then we later we form the quaternary type structure. Okay. तो उसमें क्या होता है कि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, मोनोमेरिक प्रोटीन और पॉलीमेरिक प्रोटीन. मोनोमेरिक प्रोटीन का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड हैं बट ऑल पॉलीपेप्टाइड सेम टाइप है. मींस ऑल आर लाइक ए टाइप ऑल आर लाइक बी टाइप. बट पॉलीमेरिक में क्या होगा, इसमें वन टाइप पॉलीपेप्टाइड होगा. So that type of polypeptides we call it as oligomeric. तो ये जो मैं यहाँ पिक्चर शो कर रही हूँ, this is monomeric और oligomeric protein. Oligomeric. Oligomeric. Right. This is oligomeric because all the colors represent one single polypeptide. तो आप देख रहे हो यहाँ पे blue, yellow, green and ये sky blue 4 टाइप के हैं. तो this is oligomeric. अगर ये सारे ब्लू होते या फिर ये सारे येलो होते देन इट इज द मोनोमेरिक. ओके. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब होता है, जब भी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट, दैट टाइम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कम्स इन द पिक्चर. And then again the thing is that whether the all polypeptides of single type or if it is of a different type. तो हीमोग्लोबिन एज एग्जांपल ऑफ टेट्रामर. टेट्रामर यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब मोर देन हो तो मर वर्ड यूज्ड फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड टेट्रा मींस 4 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज देयर. डाइमर मींस कि 2 टाइप के होंगे, ट्राइमर मतलब कि 3 टाइप्स के होंगे. तो ये चीज आप लोगों को समझना. हीमोग्लोबिन एग्जांपल ऑफ टेट्रामर. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन डीनेचुरेशन. तो प्रोटीन डीनेचुरेशन से क्या समझते हो आप लोग? Bond टूटना में. Manipulation of protein. ओके. और बताइए व्हाट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन? मैम इसमें सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ प्राइमरी ही रहता है. ओके, वेरी गुड. और अभी जो आप बोल रहे थे मैनिपुलेशन, तो किस टाइप का मैनिपुलेशन हम कहते हैं प्रोटीन में? मैं जैसे तो डीनेचर्ड हो जाता है, वो फंक्शनल नहीं रह पाता, इसलिए. ओके. यस, दैट इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन. तो डीनेचुरेशन जैसे कि वर्ड से क्लियर है कि जो उसका नेचुरल फॉर्म है उसको हम खराब कर रहे हैं, बदल रहे हैं. ओके.
So that is denaturation. So whenever this 3-dimensional conformation is protein is denatured, मतलब उसको खराब कर दिया जाता है, broken, disrupt किया जाता है, तो that procedure we call it as a denaturation. तो इट कैन बी डन, ये बहुत सारे प्रोसीजर है, आप जो कह रहे हो कि मैनिपुलेशन, तो दैट कैन बी डन बाय डिफरेंट प्रोसीजर, लाइक यू नो कि प्रोटीन है, प्रोटीन देन रिक्वायर अ पर्टिकुलर पीएच, बिकॉज हमने देखा है कि अमीनो एसिड आर रिक्वायर, दे विल बी हैविंग पर्टिकुलर चार्ज एट पर्टिकुलर पीएच. So as soon as we are changing the pH, what happens? This 3-dimensional structure will change. Why this 3-dimensional structure will change? Because you know, जैसे pH change होगा कि उसकी charge and polarity change होगी, charge change होगा तो obviously इसमें जो different types of ionic and different types of bonds थे वो change हो जाएगा. सेकेंडरी क्या होता है कि जब हम उसको हीट करते हैं देन ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, देन वेंडरवाल फोर्सेस होता है वो टूट जाता है. उसी तरह जब हम यूरिया से ट्रीट करते हैं तो उसमें भी जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोफोबिक एंड ये वेंडरवाल फोर्सेस होता है वो ट्रीट जाता है. जब हम केमिकल रिएजेंट लाइक इथनॉल से ट्रीट करते हैं तो सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाते हैं. तो ये सारे प्रोसीजर कम्स अंडर द मैनिपुलेशन ऑफ प्रोटीन. तो वो दिस इज द, जैसे कि अभी आप में से किसी ने बताया कि व्हेन द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज denatured or disrupted, so that is called your denaturation of protein. So very important to understand कि जब भी आपका denaturation of protein होता है तो क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, सॉल्ट ब्रीजेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे. बट आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डीनेचुरेशन जब होगा कि सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, उसकी सारी मतलब सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी बट उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहती है. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डीनेचुरेशन करने से प्रोटीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और इट इज नॉट अफेक्टेड? कम हो जाती है मैम. ओके, और बताओ बाकी लोगों को क्या लगता है, वो सही बोल रही है, कम हो जाती है? नो मैम, सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? यस. सरफेस एरिया से न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ेगी? ओके, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि सेम रहती है? मैम न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि डीनेचुरेशन करने के बाद जो फूड होता है वो आसानी से डाइजेस्ट होता है बॉडी में. ओके, और बताइए. नो, एक्चुअली होता क्या है कि डीनेचुरेशन करने से इसके न्यूट्रिशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है. दैट इज एज गुड एज मतलब अनडीनेचर्ड जो कहते हैं ना कि बिना डिस्ट्रॉट किए हुए. इसका एग्जांपल है कि हम लोग जो एग होता है उसको बॉईल करके खाते हैं, तो अगर इसकी क्या कहते हैं वो कम हो जाती है तो ऑब्वियसली हम इसे बॉईल करके नहीं खाते. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, तो देयर इज नथिंग अबाउट डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन के जो प्राइमरी सीक्वेंस होता है दैट इज द सेम ओनली, अमीनो एसिड सीक्वेंस इज द सेम ओनली, so there is a no effect on its मतलब nutrition point of view से. nutrition point of view से it is same as it whether it is denatured or not. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है. इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है बिकॉज इसकी 3 डायमेंशन चला जाता है. लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट बहुत ज़्यादा. डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स ट्रू कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है. लेकिन न्यूट्रिशन की जब बात करें तो न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज अबाउट इट्स अमीनो एसिड कंपोजिशन, कि ये कितना अमीनो एसिड देता है, तो दैट रिमेन सेम ओनली. तो इसलिए क्या होता है कि न्यूट्रिशन पे कोई असर नहीं पड़ता, ये सेम ही रहता है जैसा पहले था. आफ्टर डीनेचुरेशन भी वो वैसे ही रहता है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. जब भी ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस पे गलती करते हैं, वही कह देते हैं कि बढ़ जाती है, घट जाती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि देयर इज ए नो इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटीन. एंड क्यों असर नहीं हो रहा है? बिकॉज इसका अमीनो एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट nutrition of the protein, then it's mainly concerned with its amino acid composition. So that's why there is no change on the nutritional value. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next one is the एक साइंटिस्ट इन्होंने काम किया था डीनेचुरेशन पे कि डीनेचुरेशन एंड देन व्हाट हैपेंस कि जब हम डीनेचुरेटिंग रिएजेंट्स होते हैं लाइक यूरिया, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन फिर से वो रीनेचुरेट हो सकता है.
So there are two types of denaturation. One is the reversible, other one is the irreversible. रिवर्सिबल में क्या होता है कि उसको जैसे कि एग बॉइलिंग है, सो दैट इज इरिवर्सिबल. आप उसको एग को ठंडा करोगे तो ऐसे नहीं कि फिर से वो नॉर्मल एग की तरफ आता है. तो उस टाइप के डीनेचुरेशन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल. लेकिन जब हम केमिकल रिएजेंट्स की बात करते हैं, लाइक यूरिया से ट्रीट करना हुआ या फिर बीटा मरकैप्टोन इथेनॉल से ट्रीट करना हुआ, तो उसमें क्या होता है कि जब उस रिएजेंट को हम वहाँ पे डायलिसिस से या फिर किसी प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं तो फिर से वो रीनेचुरेट होकर पुराने नेचुरल कन्फर्मेशन में आ जाता है. ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीनेचुरेशन, वन इज द रिवर्सिबल एंड अदर वन इज द इरिवर्सिबल. तो एनफिंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम किया था. तो दैट इज मेनली अबाउट द पैटर्न ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. तो जब हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले क्या होता है. प्रोटीन फोल्डिंग जब स्टार्ट होता है, लाइक प्राइमरी से जब ये सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोफोबिक बनता है, या क्या बनता है? आप बताओ गेस करके. आपको क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. और बताओ, और लोगों को क्या लगता है? ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों लगता है आपको सबसे पहले बन रहा है? मैम बिकॉज सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. ओके, और बताओ बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सा बॉन्ड सबसे पहले बनना चाहिए जब प्रोटीन फोल्डिंग स्टार्ट होता है? जस्ट गेस करो. मैम हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल बॉन्ड. देख, दोनों में सबसे पहले कौन बनेगा? हाइड्रोजन या वैंडरवाल पहले बनेगा या हाइड्रोफोबिक बनेगा? मेनली तीन टाइप के बॉन्ड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक और वैंडरवाल. तो तीनों में से सबसे पहले कौन बनना चाहिए? सबसे पहले मैम वंडरवॉल होना चाहिए फिर तो. सबसे पहले वैंडरवाल होना चाहिए. ओके, तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए फिर या फिर वैंडरवाल होना चाहिए. ओके, तो इसको ही प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. उसमें क्या किया उन्होंने कि राइबोन्यूक्लियस एक आपका ये था, क्या कहते हैं, एंजाइम था, उसको लिया और उसको क्या किया, उसमें 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड थे. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ये चारों डाइसल्फाइड बॉन्ड है. और उसको 8 मोलर यूरिया के साथ, जो कि बीटा मरकैप्टोइथेनॉल था, उसे ट्रीट करते हैं. तो ऑब्वियसली जब हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, दिस इज द डाइसल्फाइड ब्रेकर. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जितना भी होता है उसको वो ब्रेक कर देता है. उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भी डीनेचर हो गया था, डायलिसिस करके दे रिमूव द यूरिया एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और उसको छोड़ दिया कि फिर से देखते हैं वो कैसे ये करता है. तो एयर ऑक्सीडेशन होके फिर क्या हुआ कि इसमें आपका ये बन गया जहाँ जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना है. दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने जस्ट रिमूव बीटा मरकैप्टोइथेनॉल. ओके, और जो यूरिया था उसको रिमूव नहीं किया. उसके बाद उन्होंने देखा कि अब किस टाइप का बन रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका ये था, क्या कहते हैं उसको, जब बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को किया तो उस समय भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, बट ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था उसका सही से उसका पोजिशनिंग नहीं था कि रैंडमली, ये देख रहे हो यहाँ पे ये पिंक पिंक के साथ पेयर करना चाहिए तो पिंक ग्रीन के साथ कर रहा है, ये येलो येलो तो ठीक है, तो ये रैंडम बन गया. एक्चुअल स्ट्रक्चर उसको ऐसा बनना चाहिए था, बट यहाँ पे बनना क्या था, ये यहाँ पे इस तरह से बन गया. तो इससे उन्होंने क्या कंफर्मेशन निकाला, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जस्ट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल रिमूव किया था, यूरिया जो था वो नहीं रिमूव किया था, और यूरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. So with this, he concluded that the first bond formed during the folding is the hydrophobic bond. Okay, ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बनता है ना वैंडरवाल बनता है. जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है. Why this hydrophobic bond is forming? Because अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि whenever this packaging and folding will start, so first thing will happen that all the non-polar amino acid will go inside the protein and polar will come outside the protein. Okay, तो पहला काम क्या होता है कि जब भी प्रोटीन का फोल्डिंग होता है, जब भी स्टार्ट होता है, तो ये सब क्या करते हैं कि जितने भी नॉन पोलर होते हैं वो पानी से डरते हैं तो वो जाकर छुप जाते हैं अंदर की तरफ, और जितने भी पोलर होते हैं वो तैयार रहते हैं बाहर की, यस वी आर रेडी टू फाइट विद वाटर, तो वो सामने खड़े हो जाते हैं. तो पहला यही चीज होता है. और जैसे इस तरह का होता है तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, whenever all the non-polar molecule will come together, so that time hydrophobic interaction is there.
तो जब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है कि एवरीथिंग विल बी इनसाइड नॉन पोलर एंड पोलर विल बी आउटसाइड, ये एक टाइप का वो स्ट्रक्चर बनता है, देन ओनली दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग, मतलब कि जो उसकी जिसके पास हो तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, अगर डाइसल्फाइड हो तो डाइसल्फाइड बना लेता है। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक होता है, एंड देन ओनली आफ्टर दैट हाइड्रोजन एंड दिस अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। तो ये समझ में आप लोग को कि हाइड्रोफोबिक क्यों पहले बनता है? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, तो अभी हमने क्या देखा ना कि जब भी प्रोटीन फोल्डिंग स्टार्ट होता है या होता है, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग घर बना रहे हो, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पिलर्स बना लेते हैं कि उसका पिलर्स यहाँ पे होना चाहिए, देन ओनली उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नहीं इसमें वॉल कहाँ पे देना है और विंडो कहाँ पे, मतलब ये विंडो एंड डोर कहाँ पे होना चाहिए। तो सेम थिंग क्या होता है कि एज सुन एज फोल्डिंग विल स्टार्ट, सारे जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, जो डरते हैं, वो अंदर की तरफ छुप के बैठ जाते हैं, एंड जो हाइड्रोफिलिक होते हैं जैसे कि नॉन पोलर वाले एमिनो एसिड होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये इस टाइप का मतलब प्रोटीन बहुत सारे कंफर्मेशन ट्राई करता है कि हाँ ऐसे भी बनना है वैसे भी बनना है, तो वैसा कंफर्मेशन जिसमें कि वो सारे नॉन पोलर अंदर चले जाए और पोलर बाहर की तरफ हो जाए, तो वो वाला कंफर्मेशन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। और जब वो कंफर्मेशन बन जाता है एक बार, तो उसके बाद जो नॉन पोलर के बगल में पोलर है या पोलर पोलर में है, तो वो अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे भी उसका अरेंजमेंट होता है उसके अनुसार वो बनाते हैं। लेकिन पहला चीज क्या होगा, वही चीज होगा कि जितने भी डरपोक होते हैं वो अंदर जाके बैठ जाएंगे, मतलब नॉन पोलर जितने होते हैं वो सब अंदर बैठ जाएंगे और पोलर वो बाहर सामने आ जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सारे नॉन पोलर एक साथ क्यों होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जब भी नॉन पोलर हमने देखा था ऑयल एंड वाटर एक्सपेरिमेंट, जो बात किया था कि व्हेनेवर वी आर पुटिंग ऑयल ड्रॉप्स इन वाटर, what happens, you are putting in different corners of bucket oil, but after some times all oil will come together and stick together and they will be together. So why they are together, that is because of hydrophobic interaction. तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि सारे नॉन पोलर एक साथ आ रहे हैं, so that is because of hydrophobic interaction, and that's why the first bond to be formed is the hydrophobic interaction or hydrophobic bond. और एक बार जब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन जाता है, वो स्टेबल हो जाते हैं, देन ओनली दे विल डिसाइड कि उनके अप्रोक्सीमेटी में अगर कोई मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो आयनिक बॉन्ड, या फिर दो सल्फर वाले हैं तो देन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो वो सब बाद में डिसाइड होता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यू मैम। Okay. So next coming to the protein classification. Protein को classify हम कैसे कर सकते हैं? So protein can be classified on different bases like structural basis, shape, solubility, composition, nutritional and biological function. So structure तो हमने अभी देख लिया कि on the basis of structure we can classify protein as the primary protein, secondary, tertiary. Then coming to the shape. शेप की जब बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स, दैट इज द वन फाइब्रस टाइप, अनदर वन इज द ग्लोबुलर। फाइब्रस कहने का मतलब क्या है कि ये फाइबर की तरह लंबा लंबा ये प्रोटीन रहता है, एंड ग्लोबुलर तो ये गोल राउंड टाइप से होता है। तो व्हाई दिस इज फाइब्रस, बिकॉज इन दिस केस क्या होता है, एक्सियल रेशियो, मतलब लंबाई से इसकी चौड़ाई की जब रेशियो देखते हैं दैट इज मोर देन 10 होता है आपका। ओके, लॉन्ग एंड नैरो होता है, लाइक दिस होगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन वी कॉल इट एज अ फाइब्रस प्रोटीन। वेयर इज इन केस ऑफ राउंडेड, ये क्या होगा, एक्सियल रेशियो जो होता है लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है दैट इज लेस देन 10 होगा, then it is the round or spherical type. So these are the two basic classification based on the shape. Then the comes their role. तो इन दोनों में difference क्या है? Fibrous protein that is mainly involved in the structure and strength providing, and globular protein होता है that is mainly for the functional and catalytic transport, उस टाइप के function में काम करता है। Then when we talk about solubility, तो fibrous protein होते हैं वो generally insoluble in water होते हैं, whereas globular protein होता है they are soluble in water. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है कि इसमें रिपीटेटिव अमीनो एसिड होते हैं। रिपीटेटिव अमीनो एसिड का होने का मतलब है कि सपोज इसमें जनरली इसमें प्रोलीन ऑन हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, तो क्या होगा कि 4 अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, फिर थोड़े समय के बाद फिर से ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, फिर दूसरा अमीनो होगा। तो ये जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए रिपीटेटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस। जो ग्लोबुलर होते हैं उसमें इरेगुलर अमीनो एसिड होते हैं, इसका कोई सीक्वेंस प्रेडिक्टेड मतलब रिपीटेड नहीं होता है। देन टॉकिंग अबाउट द
stability, it is less sensitive to change in pH and heat, whereas globular protein होते they are more sensitive. And examples की बात करें तो कोलाजन है, मायोसिन, फाइब्रिन, ये सारे जो स्ट्रक्चरल वाले प्रोटीन होते हैं those all comes under fibrous protein, whereas जो enzymes टाइप के हो गए या ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं those comes under the globular protein. तो जनरली इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. Okay, so whenever I am asking you to write down the difference between fibrous and globular protein, ज्यादातर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देंगे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, नैरो, राउंडेड, ऐसे ये वाला कॉलम आप लोग प्रॉपर्टीज वाला, मतलब कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिफरेंशिएटिंग. इफ यू आर सेइंग लॉन्ग एंड नैरो, मतलब कि क्या किस बेसिस पे आप लॉन्ग एंड नैरो कह रहे हो, तो यू शुड राइट दिस वन कॉलम एज प्रॉपर्टीज shape and then you write. Then सब कुछ लोग लिखेंगे कि soluble insoluble, soluble in what, soluble in water. और तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो you have to write in this tabular form only, then only you are going to get full marks. Otherwise मैं पूरा मार्क्स नहीं दूंगी. कुछ लोग क्या करते हैं, वो थ्योरी की तरह पूरा लंबा लंबा उसको आंसर लिख देंगे कि लॉन्ग होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे टू डिफरेंशिएट एनीथिंग. जब भी किसी भी चीज, नॉट ओनली इन माई पेपर, other papers also, if somebody will ask you to write the difference between anything, you have to write like this in tabular format, and that too on what basis you are differentiating, whether you are talking about solubility, whether you are talking about sequence stability. तो ये चीज, ये कॉलम डालना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, मैं बोलती हूँ टेबुलर में लिखना चाहिए, तो बहुत सारे लोग टेबुलर में तो लिख देते हैं ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, पर ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं. ओके, तो अगर ये कॉलम छोड़ोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. कौन है, अपना माइक म्यूट करो आप. ओके, तो ये समझ में आ गया ये कैसे आंसर करना है ये क्वेश्चन. मैम एक क्वेश्चन है, ग्लोबुलर प्रोटीन मैम अनस्टेबल होता है ना? अनस्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा क्या कहते हैं सेंसिटिव होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स क्या है, एंजाइम्स एंड ऑल है, तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन pH and heat. So that's why we can say that it is more sensitive, not like unstable, but they are more sensitive. मैम मोर सेंसिटिव होता क्यों, मतलब कि स्ट्रक्चर फोल्डिंग के कारण होता है या फिर कोई और Yes. रीजन होता है? यस, क्योंकि इसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस आप देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, कि जैसे मैंने बोला इसमें रिपीटेटिव अमीनो एसिड होता है, तो प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें ग्लाइसिन वगैरह होते हैं, पर इसमें सीक्वेंस नहीं होता है. तो जैसे हम एंजाइम्स, इसके एग्जांपल्स आपके एंजाइम्स है, तो यू नो एंजाइम्स में क्या होता है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच एंड हीट. उसका अमीनो एसिड कंपोजिशन ऐसा होता है कि जब पीएच चेंज होगा तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, पोलरिटी उसमें चेंज होगी तो ऑब्वियसली वो उसका स्ट्रक्चरल मतलब क्या स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगा. तो दैट्स व्हाई दे आर मोर सेंसिटिव. ओके, थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस्ट ऑफ कंपोजिशन. कि जब हम प्रोटीन के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली दो ग्रुप आते हैं, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. तो सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं कि जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड, उसमें कोई अदर ग्रुप्स नहीं होता, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रुप्स नहीं होते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एग एल्बुमिन. वेयर इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, दे आर कॉन्जुगेटेड और एसोसिएटेड विद सम अदर पार्ट्स आल्सो along with amino acid. तो उसके हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, एमिनो एसिड प्लस सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होगा, तो दैट नॉन एमिनो एसिड पार्ट वी कॉल इट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो ये चीज हम लोग एंजाइम में देखेंगे कि एंजाइम में जो होते हैं, आपने देखा होगा कि एंजाइम जो होलो एंजाइम कहते हैं उसमें एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है. तो एपो एंजाइम इज योर एमिनो मतलब प्रोटीन पार्ट, एंड को एंजाइम दैट इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट. तो दैट टाइप ऑफ प्रोटीन कम्स अंडर कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड मतलब वो किसी से जुड़े हुए हैं, अदर देन अमीनो एसिड आल्सो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कम्स अंडर कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड. ओके, सॉरी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. तो इसके एग्जांपल्स है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात करें, लाइक लाइपोप्रोटीन. तो लाइपोप्रोटीन में क्या होगा कि यहाँ पे लिपिड प्लस प्रोटीन है. सिमिलरली ग्लाइकोप्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट प्लस इसमें अमीनो एसिड दैट इज अ प्रोटीन. So these are the examples of conjugated protein. तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. Then classification on the basis of nutrition. तो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो इट इज अबाउट द अमीनो एसिड कंपोजिशन. So there are two types of protein. One is the complete protein, other one is the incomplete protein.
तो कंप्लीट प्रोटीन वैसे प्रोटीन होते हैं विच प्रोवाइड द ऑल टाइप्स ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, तो वैसे एमिनो एसिड को हम कहते हैं कि प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। वेरेज कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं कि जब उसको हम डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, हम खाते हैं, आफ्टर दैट दे विल बी लैकिंग इन 1 or 2 एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। तो वैसे प्रोटीन को कहते हैं हम इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है क्या, जितने भी जो वेजिटेबल या फिर जो होते हैं ना प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन होते हैं, दोज आर मोस्टली इनकम्प्लीट प्रोटीन, एंड एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर द कंप्लीट प्रोटीन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि सीरियल्स जो होते हैं वो किस चीज में डिफिशिएंट होते हैं, मैम लाइसिन और थ्रेओनीन। और पल्सेस आर डिफिशियंस इन मिथ्योनिन। ओके, तो दैट्स द रीजन कि जितने भी मोस्टली जब वेजिटेरियन फूड की बात कर रहे हो, तो वेदर इट इज नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो आप देख रहे होंगे कि दाल के साथ हम लोग चावल खाते हैं या फिर इडली के साथ वो सांभर खाते हैं। तो दैट इज द रीजन दिस कॉम्बिनेशन दे हैव रिकमेंडेड, बिकॉज जो कि आपके सीरियल्स में डिफिशियंट है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पल्सेस, और जो पल्सेस में डिफिशियंट है दैट इज प्रेजेंट इन द सीरियल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव दाल एंड राइस और इडली एंड सांभर, उसके साथ दोनों का पल्स एंड सीरियल का कॉम्बिनेशन चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल प्रोटीन लाइक फिश प्रोटीन और एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, सो दोज आर मोस्टली कंप्लीट प्रोटीन, उसमें जितने भी एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, so that is the difference between complete and incomplete protein. Next is the classification based on solubility. तो ये soluble किस चीज में है, whether it is soluble in water or alcohol, तो इसके बेसिस पे ये आपके 7 classes हैं। So albumin they are soluble in water, protamines है they are the soluble in water but conjugated by, तो ये टेबल आप लोग को याद रखना है कि कौन से किस में soluble होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक चीज़ नहीं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और 70% अल्कोहल, और या फिर किसी में भी सॉल्युबल नहीं है, तो ये चीज़ देख लेना आप लोग। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, कि क्या वो काम करता है हमारे बॉडी में। तो लाइक कैटालिटिक प्रोटीन है तो दे विल बी इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक फंक्शन। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो दे विल बी प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो जैसे कि हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन है तो ये एंजाइम्स वगैरह में काम करते हैं। ओके, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो सब लोग क्या करते हैं, जस्ट ये स्लाइड मेरे यहाँ पे छाप के चले आते हैं आप लोग। लेकिन क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, तो इसमें आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको 5 मार्क्स दूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन जस्ट पॉइंट, but whenever question is asked for 5 marks, even 3 marks also, you have to explain it, that catalysis means what catalysis. Just 1 line or 2 line you have to write, and then you give the example is your enzyme. Similarly, if you are saying that classification on the basis of function is the structural means what, and then keratin is the example. तो वो सारा डिटेल आपको लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप लोग जस्ट ये टेबल ऐसे छाप के आओगे तो फिर आपको आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, so this is all about protein. तो किसी को one more thing is there are some, अभी तक हमने बात किया था जितने भी amino acid those were the standard amino acid, but there are few amino acids which are not the part of protein but they are important in our body. So these are the list of those amino acid like ornithine है, citrulline, these are the part of urea cycle. होमोसेरिन है, ये मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म है, गाबा है, इट इज इनहिबिटर है। तो ये आप लोग को याद रखना है, इससे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। दीज आर द नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड क्यों कहते हैं इसको हम लोग, व्हाई दिस एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स? They are not found in protein. involved in protein formation. Right, they are not standard amino acid, that means they are not involved in the protein synthesis, but they are having very important work in our body. So that's why you need to remember the name of these 6 or 7 whatever amino acids are there, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है कि व्हाट आर द नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, गिव द फ्यू एग्जांपल्स, देन यू हैव टू राइट द बेसिक अबाउट दिस वन एंड देन फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। तो किसी को डाउट कुछ भी प्रोटीन में? No, ma'am.
ओके, तो फिर ये क्लास ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है, यहीं पे खत्म करते हैं। मैम स्लाइड शेयर कर देना। हाँ, स्लाइड में आपकी सीआर से शेयर कर लूँगी, वो आप लोग को सेंड कर देगी। और सेकंड हाफ में बीबीसी 101 के लिए फिर आप लोग की क्लास होगी। तो आज थ्योरी क्लास ही हम डिस्कस करेंगे सेकंड हाफ में। आप लोग को शायद पता होगा कि सितंबर एंड में आप लोग का मिड टर्म होने वाला है। यस मैम। तो इसलिए पहले हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन कवर कर लेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। ओके, तो बीबीसी 101 वाले आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, एंड 103 वाले आप लोग थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करो। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देगी 2 मिनट के लिए आप लोग। Yes, sir. बाकी